Good morning students. In this video I am going to explain you our third chapter in civics, the government. There are many rules and regulations that we follow at school. Suppose if there were no rules and regulations in the schools, what will happen? Why we think that rules and regulations are so important? क्यों important है बच्चों? कोई भी नियम और कानून हमारे स्कूल के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे entire nation के लिए. In this chapter we will learn about the government and why we need it. सरकार क्या होती है और हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स. भारत में 3 स्तर पर सरकार है. एंड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग तरह की सरकारों के बारे में. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नीड फॉर गवर्नमेंट. जैसे बच्चों हम अपनी फैमिली में रहते हैं, कुछ नियम हमारे परिवार में होते हैं, हमारी सोसाइटी और समाज में होते हैं. उसी तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं और वो नियम बनाती है गवर्नमेंट. अब एक क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है. तो गवर्नमेंट वो बॉडी या एजेंसी होती है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट which governs the country and provides different facilities for its citizens. Citizens का मतलब होता है बच्चों नागरिक. हर एक देश में एक इस तरह का तंत्र होता है या सरकार होती है, संस्था होती है जो कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और उस बॉडी को कहा जाता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है regarding the construction of roads, canals and bridges, setting up of hospitals or providing housing and electricity facilities to the people. It also maintain peace and order. And the modern government also handles the social issues like dowry or helps the poor section of the society. In other words, we can say that the government works for the social welfare of the people. Government also protects the country from foreign invasions, बाहरी हमलों से. In case of natural calamities, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, like an earthquake or a cyclone, it provides relief to the people. Providing important services like postal, railways, banking, etc. is also an important task of the government. The government acts on behalf of the people by taking important decisions and implementing those among all the people within its territory. Territory का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र. सरकार जो होती है वो अपनी टेरिटरीज़ में पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और जो भी नियम बनते हैं उन्हें वो लागू भी करती है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इन इंडिया वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट विच make the rules for the entire country, the state government which makes rules for the state, and the local government like local self government like nagar municipal corporation, municipalities and gram panchayats. The government has a vast territory to look after and it has to take decision on every possible issue. That is why in India the task of governance is divided at 3 levels: the national or central level, the state level and the local level. The highest level of the government is the central level which relates to the entire country.
The next is the state level government, which covers an entire state, and local level means the government in our villages, locality, town or city. डिसीज़न मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, डिसीज़न मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना और पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भाग लेना। सरकार का सबसे पहला काम होता है कानून बनाना। हर एक आदमी जो कि उस देश में रहता है उसे उन कानूनों के अनुसार ही चलना पड़ता है। ये कानून सबके लिए एक समान होते हैं, चाहे से वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई फीमेल सेलिब्रिटी हो या फिर वो एक कॉमन पीपल हो। इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ प्रोहिबिटिंग ग्रांटिंग एंड रिसीविंग डॉगरी, जैसे कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है जिसमें उसने प्रतिबंधित किया है दहेज लेने और देने को, द लॉ इज़ एनफोर्स्ड एंड द ऑफेंस इज़ मेड पनिशेबल, तो इस कानून को लागू किया जाएगा और अगर कोई दहेज लेता या देता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। अगर गवर्नमेंट ये फील करती है कि कोई भी लॉ लोग सही तरीके से नहीं पालन कर रहे हैं तो या फिर उस लॉ के साथ में हिंसा हो रही है, द लॉ इज़ बीइंग वायलेटेड, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि किसी स्कूल में किसी पुअर सेक्शन के बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया जाए उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स पे, उसकी कास्ट पर या उसके रिलीजन और रीज़न को लेकर के, तो वो बच्चा और उसके पेरेंट्स कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं इस भेदभाव के लिए। Let us come to the next topic, forms of government. There are many forms of government depending upon the sources from which the government derives its power. The most common form of government is democracy. Democracy means rule by the people. If the government derives its power from the people, then this form of government is known as a democracy. In a democracy, the people choose their own leaders. Elections are held in which people vote and choose their representatives. डेमोक्रेसी होता है बच्चों लोकतंत्र, जिसमें कि लोग अपना नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है इलेक्शन। इलेक्शन भारत में हर 5 साल के बाद में होते हैं। मोनार्की, मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द टेरिटरी और द स्टेट रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन, जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है। इस तरह की सरकार प्राचीन समय में एंशियंट टाइम्स में देखने को मिलती थी। अभी भी कुछ कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया और ओमान, यहाँ पर मोनार्की हमें देखने के लिए मिलती है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द किंग और द क्वीन हैज़ द कंप्लीट पावर टू रन द गवर्नमेंट एंड टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बच्चों तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है कि एक जो पावरफुल पर्सन होता है या पावरफुल लोगों का जो ग्रुप होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है अपने एंटायर नेशन को रन करने के लिए, लोगों के रिगार्डिंग सारे के सारे डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पर जो पावरफुल पर्सन या ग्रुप जो होता है पीपल का, वो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होता और इसमें जनता का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ पर लोगों को कोई अधिकार भी नहीं मिलते। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज अ डिक्टेटर। हिटलर जो था वो एक तानाशाह था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वो संस्था जो कि देश के प्रत्येक नागरिक को
वोट देने का अधिकार देती है, मीन्स राइट टू वोट. Universal adult franchisee means that every adult has the right to vote. In India, every citizen who is 18 years and above has the right to vote. अब बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप लोग तो देख रहे हो, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें विरासत में नहीं मिली है. हमने बहुत स्ट्रगल किया है इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को पाने के लिए. जैसा कि अपन जानते हैं कि इंडिया जो था वो 200 ईयर्स तक कॉलोनी बन कर के रहा था ब्रिटिशर्स की. ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में. इस पीरियड में इंडियंस ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे कि अपने देश की सरकार को वो चलाएं, लेकिन उस समय पर जो ब्रिटिशर्स रूल था उसमें कुछ ही लोग जो कि वेल्दी होते थे या जिनके पास में प्रॉपर्टी होती थी, केवल उन्हें ही अलाउ किया गया था वोट कास्ट करने के लिए. लेकिन 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मींस राइट टू वोट हर एक आदमी को मिला. नो वन कैन डिनाइड on the basis of his or her caste, sex, religion, region or creed. Let us learn a case study. Women suffrage movement. वुमेन सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों राइट टू वोट. अब आप कहोगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. पुराने समय पे क्या होता था कि औरतों, महिलाएं जो थी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था. इसमें औरतों ने वोट देने की मांग उठाई और ये मूवमेंट कहलाया वुमेन सफरेज मूवमेंट. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उस समय पर फीमेल्स की इम्पोर्टेंस लोगों के सामने आई थी, क्योंकि जितने भी मेल थे वो फ्रंट नेशन अपने अपने नेशन की फ्रंट पर लगे हुए थे, जहाँ पर कि वो दूसरे देशों के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, और उनकी जो औरतें थी वो घर में थी और वो अपने घर को और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही थी. जब औरतों की इस कैपेबिलिटी का लोगों को पता चला, उसके बाद में औरतों का इम्पोर्टेंस लोगों के सामने आया. At that time, female started organizing and managing different kinds of work. They were involved in taking important decisions. People realized that they had unnecessarily stereotyped women and treated them unequally. लोगों को अब ये समझ में आ गया कि उन्होंने महिलाओं के प्रति एक पूर्व धारणा बना रखी थी, और अब समय है कि उनके साथ में समान व्यवहार किया जाए. कुछ महिलाओं ने साहस दिखाया वोट के अधिकार मांगने का, और ये जो लेडीज़ थी ये सफरेट्स कहलाई. अमेरिका में 1920 में और यूनाइटेड किंगडम में 1928 में वोटिंग राइट्स अलॉट हुए फीमेल्स को. फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, केवल उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला जो कि जिनके पास संपत्ति थी और जो 25 साल से ऊपर थे या फिर अमीर थे. औरतों को और 25 साल से कम लोगों को या वो लोग जो कि गरीब थे, उन्हें वोटिंग राइट से अलग रखा गया. केवल 1946 में फ्रांस के अंदर लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस के अंदर. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस